आज हम यूपीएससी के जीएस 4 एथिक्स का क्लास 7 जिसका टॉपिक है एटीट्यूड। यूपीएससी के सिलेबस में एटीट्यूड में प्रॉपरली डिस्क्राइब उन्होंने दिया हुआ है कि एटीट्यूड के सिलेबस में होगा कंटेंट ऑफ एटीट्यूड, स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड, फंक्शन ऑफ एटीट्यूड, इट्स इन्फ्लुएंस एंड रिलेशन विथ थॉट एंड बिहेवियर. So we will cover 4 points like content of attitude, then function of attitude, then structure, content, then structure of attitude, then function of attitude, and some of 3 models of attitude in this lecture. So first of all, we will start with the definition of attitude. What do you understand by attitude? Attitude को आप कैसे describe करोगे? So we'll remember 2 names. First is Wiggins and second is Breckler. So according to Wiggins and Breckler, attitude is like or dislike towards anything or any person which reflects in the behavior of person is known as attitude. Attitude can be two types. The first is positive attitude and second can be negative attitude. Means any individual have positive attitude toward the something, and also other person have a, negative attitude. Other person has a negative attitude toward that same thing. So attitude can be positive, can be negative. Also attitude can be ambivalent, like uh, positive and negative at the same time. Like more positive, less negative same time, or more negative, more less positive same time. So attitude can be positive, negative, or ambivalent. But what are the two types of attitude? The first is explicit attitude and second is implicit attitude. So what do you mean by explicit attitude? Explicit attitude is the attitude which is controllable and consciously, and which can easily reported by other persons. Like जैसे हम देख सकते हैं कि ये एटीट्यूड दूसरों का एटीट्यूड वी कैन एनालाइज और ऑब्जर्व द अदर पर्सन एटीट्यूड या और लाइक और डिसलाइक टुवर्ड समथिंग is the explicit attitude. But what do you mean by implicit attitude? Implicit attitude is the attitude is unconscious and uncontrollable and involuntary in nature is the implicit attitude. Is unconsciously and involuntary uh, originated in persons due to the some behavior, social influential factor or the environment around us. That is implicit attitude. Now, what is the difference between attitude, opinion, and belief? We can see the diagram, that triangle at the top, that is belief. Uh, so, opinion is very narrow concept. It can be changed uh, fluently, but attitude is uh, something narrow. Like it can't change fluently as faster as opinion. And the belief is very narrow concept which very hard to uh, change. That's opinion, attitude, and belief. So we'll first of all we'll show the difference between attitude and the opinion. So the attitude is like or dislike towards something, but what do you mean by opinion? Opinion means the specific belief on particular issue or particular thing is the opinion. वो कहते हैं ना कि ओपिनियन मेरा ये ओपिनियन है इस चीज के ऊपर भगवान है कि नहीं, मेरा ओपिनियन ये है, यानी कि स्पेसिफिक बिलीफ ऑन पर्टिकुलर टॉपिक इज ओपिनियन. सो द बिलीफ कैन चेंज फ्लुएंटली यानी कि इजीली चेंज हो सकता है वो ओपिनियन, बट एटीट्यूड कैन नॉट बी चेंज इजीली. दैट द एटीट्यूड.
एंड ओपिनियन एक्सप्लिसिटली हमें स्टेटमेंट में अ, हम उसको ओपिनियन को उनके स्टेटमेंट में थ्रू आउट उसको पहचान सकते हैं। यानी कि किसी का ओपिनियन गॉड के ऊपर है कि नहीं, तो उनके जो बातें हैं, उनके स्टेटमेंट्स है, उनसे पता चल जाता है। एंड एटीट्यूड इज एक्सप्रेस थ्रू बिहेवियर। ओपिनियन स्टेटमेंट के थ्रू पता चलता है, एटीट्यूड बिहेवियर के थ्रू पता चलता है। तो ये हुआ एटीट्यूड और ओपिनियन के बीच का डिफरेंस। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड एंड द बिलीफ? तो बिलीफ वो है कि जो एक्सेप्टेंस ऑफ समथिंग विदाउट रिक्वायरिंग प्रूफ, प्रूफ के बिना जिसको एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको बोलते हैं बिलीफ। और एटीट्यूड तो पता ही है, लाइक्स और डिसलाइक टुवर्ड समथिंग। तो बिलीफ है उसको चेंज इजीली नहीं कर सकते, बट एटीट्यूड एज कंपेयर टू बिलीफ इजीली चेंज हो सकता है। और एटीट्यूड स्पेसिफिक टुवर्ड ऑब्जेक्ट होता है, बिलीफ मोर फंडामेंटल और ब्रॉडर कंसेप्ट है। तो ये हो गया एटीट्यूड, ओपिनियन और बिलीफ के बीच का डिफरेंस। अब एक क्वेश्चन ये है कि एटीट्यूड एंड पब्लिक सर्विस के ऊपर एटीट्यूड का क्या इम्पैक्ट है? तो पॉजिटिव एक 2015 में क्वेश्चन आया हुआ था ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड और डेमोक्रेटिक एटीट्यूड के ऊपर। फिर 2020 में यूपीएससी में ये भी क्वेश्चन आया हुआ था कि पॉजिटिव एटीट्यूड इज कंसिडर्ड टू बी एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिविल सर्वेंट who is often required to function under extreme stress. So what contribute to a positive attitude? यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड किसी वर्सन में हमें जगाना है, यानी कि इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो ये है क्वेश्चन। तो इसको हम समझते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड इन पब्लिक सर्वेंट मतलब कि जैसे सेल्फलेसनेस, ओपननेस, जो सोहेल वाला है कि सेल्फलेसनेस, ओपननेस, ऑब्जेक्टिविटी, ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी, इंटीग्रिटी, लीडरशिप, ये पॉजिटिव एटीट्यूड है। फिर जो कोऑर्डिनेशन है, फिर क्रिएटिविटी, इनोवेशन, और उसके साथ साथ एडेप्टेबिलिटी, ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड में हमें देखने को मिलता है। जो आरंभ इनिशिएटिव हुआ था जो लबासना में कि इंटर कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, वो भी उसमें रिफ्लेक्ट होता है। तो अभी इसको, ये क्वेश्चन था 2020 में कि उसको जगाना है पॉजिटिव एटीट्यूड इन पर्सन, तो कैसे जगा सकते हैं? तो उसमें एक वैल्यू एजुकेशन का एक इम्पोर्टेंट रोल है। फिर उनके अराउंड जो एनवायरनमेंट है, यानी कि फैमिली का इम्पोर्टेंट रोल है। फिर सोसाइटी का इम्पोर्टेंट रोल है। फिर उसके साथ साथ इनर कॉन्सेंस, यानी कि जो एजुकेशन है उस, और द रीडिंग्स है, और जो सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ एक्सपीरियंस जो है, उसका भी काफी अच्छा रोल है, जो हमें कॉन्सेंस और मॉरल वैल्यूज हम हमें वो इम्प्लीमेंट करता है। यानी कि इससे हमारे एटीट्यूड के ऊपर असर करता है, और एटीट्यूड रिफ्लेक्ट्स इन बिहेवियर। तो ये हो गया एटीट्यूड पब्लिक सर्वेंट में क्या क्या चेंज ला सकता है। हमने सिलेबस में देखा था एटीट्यूड के एक, उसका जो सब टॉपिक था एटीट्यूड में, वो है द कंटेंट्स ऑफ एटीट्यूड, यानी कि एटीट्यूड के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो इसको याद करने के लिए ABC इज द न्यूमोनिक। सो A फॉर अफेक्शन, B फॉर बिहेवियर एंड C फॉर कॉग्निशन। तो ये एक ट्रायंगल के रूप में भी हम देख सकते हैं। कॉग्निटिव, बिहेवियर एंड अफेक्टिव आर द कंपोनेंट्स ऑफ बिहेवियर एटीट्यूड। तो व्हाट डू यू मीन बाय अफेक्टिव? अफेक्टिव मीन्स कि फीलिंग, किसी के जो इमोशंस है, फीलिंग्स और इमोशंस associated with attitude towards any object। फीलिंग्स और जो इमोशंस है जो एटीट्यूड के साथ अटैच होते हैं, उसे अफेक्टिव कंपोनेंट बोलते हैं। जिस तरह जो स्मोकिंग के पैकेट के ऊपर यानी कि स्मोकिंग की कुछ कोई एडवर्टाइज आती है, उसमें बताते हैं कि अगर तंबाकू आप खाओगे तो आपके बच्चों के साथ आपकी जो लाइफ है वो कम हो जाएगी। तो आप वो एक फीलिंग यानी कि इमोशनल मैसेज जो है, वो एक अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड है। दूसरा है बी फॉर बिहेवियर, यानी कि जो पास्ट एक्सपीरियंस है, और बिहेवियर कंपोनेंट है एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के साथ। कि जैसे हमारी सोसाइटी जो
तंबाकू खाना इज उसका क्या बोलते हैं कि अच्छा बिहेवियर नहीं है, इज अ बैड हैबिट एज अ बिहेवियर कंपोनेंट। तो इस तरह बिहेवियर कंपोनेंट है और हमें बिहेवियर में चेंज लाना चाहिए। जैसे कि स्वच्छता अभियान में बोला गया था कि हमें कचरा कचरा पेटी में ही डालना है, तो एज अ बिहेवियर कंपोनेंट है। और सी फॉर कॉग्निशन, कॉग्निटिव यानी कि थॉट प्रोसेस, रीजनिंग बेस्ड एंड साइंटिफिक रीजन बेस्ड एटीट्यूड है। यानी कि जो स्मोकिंग है वो करने से हमारे लंग्स को अफेक्ट होता है और उससे हमारी बॉडी अफेक्ट होती है। तो ये एक उसका कॉग्निटिव कंपोनेंट है। और अफेक्टिव बिहेवियर और कॉग्निटिव कंपोनेंट्स दे आर सिनर्जिस्टिक इन रिलेशन, यानी कि एक दूसरे के साथ, यानी कि तीनों जब साथ में होंगे तो वो हायरली इफेक्टिव हो गए रादर देन इंडिविजुअल कंपोनेंट। तो ये हो गया कंपोनेंट्स ऑफ बिहेवियर। अभी एक ये है कि एटीट्यूड है, उसके स्ट्रक्चर कौन कौन से। पहला सब टॉपिक था कंपोनेंट वाला, सेकंड सब टॉपिक है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। एटीट्यूड का स्ट्रक्चर, इट कैन बी वन डायमेंशनल, इट कैन बी टू डायमेंशनल ऑल्सो। सो व्हाट डू यू मीन बाय वन डायमेंशनल? वन डायमेंशनल का मतलब ये है कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या फिर न्यूट्रल हो सकता है। यानी कि मेरा क्रिकेट के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड है और नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड द अल्कोहल ड्रिंकिंग के ऊपर है। तो ये हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड इन द सिमिलर एक्सिस ऑफ एक्स और वाई। और न्यूट्रल यानी कि मुझे न्यूट्रल एटीट्यूड मतलब कि आ, कोई ऐसा टॉपिक है जैसे कि मुझे अभी पोलो के गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो उससे कोई जीते हारे, कौन सी कंट्री जीते हारे, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो उसके टुवर्ड मेरा न्यूट्रल एटीट्यूड रहेगा। तो ये होगा वन डायमेंशनल। टू डायमेंशनल एटीट्यूड का स्ट्रक्चर में ये है कि एट द सेम टाइम इट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑल्सो। तो वो उसका एग्जाम्पल ये है कि कोई स्मोकिंग कर रहा है, वो स्मोकिंग कर रहा है इसका मतलब है उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है उसके तरफ, लेकिन सेम टाइम वो दूसरों को स्मोकिंग नहीं करना चाहिए ये बोल रहा है। इसका मतलब है कि उसका सेम टाइम नेगेटिव एटीट्यूड भी है। तो एक्स और वाई एक्सिस दोनों, एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस नेगेटिव, तो दोनों साथ में है। इसका मतलब है कि 2D स्ट्रक्चर हो गया। ये है टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड। अब एक क्वेश्चन ये है कि टू डायमेंशनल अच्छा है या फिर वन डायमेंशनल अच्छा है। तो इसका आंसर ये है कि टू डायमेंशनल अपीयर्स टू बी बेटर, बिकॉज वन डायमेंशनल में जो न्यूट्रल एटीट्यूड बता रहे हैं तो उसका मतलब वो वेगनेस है थोड़ा उसमें। यानी न्यूट्रल मतलब कि 0 + 0 = 0 है, या फिर +5 है -5 है = 0 एटीट्यूड है, वो पता नहीं चलता है। इसलिए 2D इज बेटर, बट फॉर कंसिस्टेंसी टुवर्ड्स एटीट्यूड 1D इज बेटर। और कॉम्प्लेक्स इश्यू अगर होगा किसी सोशल इश्यू, कॉम्प्लेक्स इश्यू के लिए 2D स्ट्रक्चर इज बेटर। एक क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिस्पांस पोलराइजेशन? रिस्पांस पोलराइजेशन मतलब कि मेरा एटीट्यूड एम्बिवेलेंट 2D एटीट्यूड है, यानी कि पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। मतलब थोड़ा मोर नेगेटिव और लेस पॉजिटिव है। मतलब कि एक एग्जांपल लेते हैं कि मुझे एट द सेम टाइम कोई बोल रहा है, ऐसे मेरा मूड है कि रेस्ट करना, यानी कि मोर पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड द रेस्ट, एंड ट्रैवल करना एट द सेम टाइम मेरा लेस एटीट्यूड होगा। बट किसी के कहने से मुझे बाहर घूमने की इच्छा हो जाती है, तो वो हो गया कि मेरा जो रिस्पॉन्स था उसको पोलराइजेशन कर दिया, एटीट्यूड का पोलराइजेशन कर दिया। ये है रिस्पॉन्स पोलराइजेशन। अभी एक एग्जाम्पल है जिसका हम यूज कर सकते हैं अच्छे से।
ये इसको देख सकते हैं कि ये जो वन डायमेंशनल व्यू ऑफ एटीट्यूड है और टू डायमेंशनल व्यू ऑफ एटीट्यूड, इसको दर्शाया हुआ है यहाँ पे, नेगेटिव पॉजिटिव और न्यूट्रल, और साथ में टू डायमेंशनल यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एक साथ, ये हम देख सकते हैं। अभी एटीट्यूड का एग्जाम्पल, उसमें एक थियरी दी थी, यानी कि इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, हस्किंसन एंड हैडॉक का एक्सपेरिमेंट विथ बियर ड्रिंकिंग। हस्किंसन एंड हैडॉक की जो बियर की ब्रांड पीने के लिए जो एथलेट्स होते हैं उनको बोला जाता है। तो कुछ एथलेट्स होते हैं वो सोचते हैं कि ये बियर दो ब्रांड है, उसमें एक बियर में शुगर ज़्यादा है तो दूसरी ब्रांड अच्छी है जिसमें लेस शुगर है, एथलेट्स के लिए शुगर कम हो वो अच्छा है, तो वो कॉग्निशन बेस्ड बिहेवियर हो जाएगा। कुछ एथलेट्स ऐसा सोचते हैं कि जो बियर ए इज मोर टेस्टफुल देन बियर बी, सो ए बियर ए इज गुड, इंस्टेड कि वो ज्यादा शुगर वाली है फिर भी उसे अच्छा बताते हैं, तो वो अफेक्शन बेस्ड एटीट्यूड हो गया, यानी कि फीलिंग बेस्ड एटीट्यूड। और कुछ जो एथलीट्स है वो उनके पास्ट एक्सपीरियंस और बिहेवियर के कंपोनेंट से बताते हैं कि ए ब्रांड ऑफ बियर अच्छी है कि बी ब्रांड अच्छी है। तो ये हो गया हस्किंसन एंड हैडॉक का एक्सपेरिमेंट। दूसरा एग्जांपल ये स्वच्छ भारत अभियान का है, जिसमें कॉग्निशन बेस्ड बिहेवियर था, कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड जो कॉग्निशन वाला था कि आप स्वच्छता रखेंगे तो आपको फायदा होगा, आपको डिसीज कम होगा। और बिहेव अफेक्शन कंपोनेंट में ये भी रखा गया था कि उससे आपको बच्चों को भी फायदा होगा कि उनको भी डिसीज नहीं होगा। और उसमें काफी सेलिब्रिटीज को भी इन्वॉल्व किया गया था उसके प्रचार के लिए। फिर एक ऑड इवन रूल है दिल्ली का, जिसमें भी एक कॉग्निशन बेस्ड बिहेवियर रखा गया था, कॉग्निशन बेस्ड एटीट्यूड, जिसमें बताया गया था कि आप ऑड इवन रूल करेंगे तो ऑड इवन रूल को फॉलो करेंगे तो आपको दिल्ली के पॉल्यूशन को कम कर पाएंगे, इससे आपके जो न्यूमोनिया वगैरह जो लंग डिसीज है वो नहीं होगा। तो ये उसका एग्जाम्पल है। अभी देखते हैं, हमने कवर कर लिया है सब टॉपिक्स, जैसे कि कंटेंट यानी कंपोनेंट 3 एबीसी वाले, फिर स्ट्रक्चर 1D 2D, ये भी कवर कर लिया है। अब थर्ड जो सब टॉपिक था यानी कि फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड के फंक्शन क्या है, इसके लिए दो जो थिंकर्स है उन्होंने थियरी दिया, एक है स्मिथ और एक है कैट्स। तो जो डेनियल कैट्स है और एक है स्मिथ, स्मिथ ने 3 फंक्शन दिए और डेनियल कैट्स ने 4 फंक्शन दिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्मिथ के फंक्शन ऑफ एटीट्यूड देखते हैं, तो उन्होंने 3 फंक्शन में सबसे पहले दिया है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन है एटीट्यूड का, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट को हम लाइक और डिसलाइक करते हैं, वो एक फंक्शन है एटीट्यूड। हमें ऑब्जेक्ट को लाइक यानी कि क्रिकेट को लाइक करने, और डिसलाइक डिसलाइक यानी कि अल्कोहल को जो हम डिसलाइक करते हैं, उसके लिए हमारा एटीट्यूड जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा है कि सोशल एडजस्टमेंट के लिए एटीट्यूड एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। जैसे कि कोई सेलिब्रिटी है, उसे हम पसंद करते हैं, तो अगर उसकी एडवर्टाइजमेंट होगी किसी पर्टिकुलर शैम्पू के लिए, तो वो शैम्पू हम लेना ज़्यादा प्रीफर करेंगे, तो वो सोशल एडजस्टमेंट हो गया। और तीसरा फंक्शन है कि एक्सटर्नलाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नलाइजेशन, मतलब कि डिफेंड द सेल्फ अगेंस्ट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि हमें इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और हमारा ईगो है कि हमें ये करना है, लेकिन उसको, यानी कि जैसे इसका एग्जांपल ये है कि कोई फेल हो जाता है किसी एग्जाम में, ठीक है, तो उसकी सेल्फ को डिफेंस करना है उसको कि मैं फेल क्यों हुआ। तो इसके लिए वो
अ, जो सिस्टम है उसको जिम्मेदार ठहराता है कि पेपर लीक हुए, फिर पेपर डिफिकल्ट था, पेपर में वेगनेस हुई। तो ये एक एक्सटर्नलाइजेशन फैक्टर हो गया कि एटीट्यूड, उसका एटीट्यूड है एक्सटर्नलाइजेशन का और सेल्फ एस्टीम का, ईगो सेंट्रिक। तो ये एक फंक्शन हो गया, तीन फंक्शन हो गए, एक ऑब्जेक्टिव, फिर सोशल एडजस्टमेंट, और तीसरा हो गया एक्सटर्नलाइजेशन का स्मिथ के तीन फंक्शन। अब डेनियल कैट्स के जो चार फंक्शन थे उसमें सबसे पहले है कि नॉलेज, यानी कि एटीट्यूड से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है और उस इंफॉर्मेशन से हम किसी ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन से हम उसके उसको लाइक डिसलाइक करते हैं। तो एक नॉलेज बेस्ड होगा। दूसरा जो है उसे ईगो डिफेंसिव बोलते हैं, जो सेल्फ एस्टीम वाला हमने एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ स्मिथ में देखा था, सेम यहाँ पे ईगो डिफेंसिव बोलते हैं। थर्ड फंक्शन है वो वैल्यू एक्सप्रेसिव है, कि इसकी वैल्यू, यानी कि एक्सरसाइज करने से ज़्यादा फायदा होता है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए वैल्यू एक्सप्रेसिव एटीट्यूड का एक फंक्शन है। और फोर्थ वन इज यूटिलिटेरियनिज्म, मतलब कि हाईएस्ट गुड ऑफ हाईएस्ट पर्सन, मैक्सिमम रिवॉर्ड एंड मिनिमम पनिशमेंट है। जैसे कि स्मोकिंग है, वो करने से उसको पनिशमेंट ज़्यादा मिलती है और मिनिमम रिवॉर्ड मिलता है, तो वो हम नहीं करते हैं, तो वो यूटिलिटेरियनिज्म है। और समाज सेवा मैक्सिमम रिवॉर्ड और मिनिमम पनिशमेंट देती है, तो उसके टुवर्ड्स हमारा एटीट्यूड अच्छा होता है। तो ये हो गया कि एक है नॉलेज, एक है ईगो डिफेंसिव, एक है वैल्यू एक्सप्रेसिव, और चौथा है यूटिलिटेरियनिज्म। दे आर द डेनियल कांट्स फंक्शन ऑफ एटीट्यूड। अब एक क्वेश्चन ये है कि एटीट्यूड और बिहेवियर के अंदर रिलेशन क्या है दोनों के बीच। हमने देखा था कि जो बिलीफ है उस वो लीड करती है, उससे एटीट्यूड बिल्डअप होता है और एटीट्यूड रिफ्लेक्ट्स इन आवर बिहेवियर। तो एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच रिलेशन ये है, अगर एटीट्यूड सिचुएशन के अकॉर्डिंगली इजीली चेंज होगा, तो उसे हम हाई सेल्फ मॉनिटर बोलेंगे, मतलब सोशली एडजस्टिव फंक्शन बोलेंगे। और अगर एटीट्यूड कंडीशन के अकॉर्डिंगली चेंज नहीं होता तो उसे लो सेल्फ मॉनिटर बोलेंगे, यानी कि वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन बोलेंगे। एक एग्जांपल है कॉली का। कॉली अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेलता है, तो उसका एटीट्यूड हो गया कि हाई सेल्फ मॉनिटर और सोशली एडजस्टिव फंक्शन, कि मैच के अकॉर्डिंगली टीम को जैसे उसको चाहिए उसके अकॉर्डिंगली वो अपने एटीट्यूड को चेंज करता है, तो हाई सेल्फ मॉनिटरिंग। लेकिन एक एग्जांपल है वीरेंद्र सहवाग का, कि आप वो उनको टेस्ट में, ओडीआई में और टी20 में, सब में एक ही जैसा खेलता देखेंगे। और सिचुएशन आप फाइनल खेल रहे हो या फिर कोई नॉर्मल एक मैच, वो सब में एक तरह ही खेलते हैं, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली चेंज नहीं होते, जिसको बोलते हैं लो सेल्फ मॉनिटर एटीट्यूड, यानी कि वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन। ये हो गया एटीट्यूड और बिहेवियर का रिलेशन। नेक्स्ट टॉपिक ये है कि एटीट्यूड फॉर्मेशन। एटीट्यूड का फॉर्मेशन किस तरह होता है, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड। सबसे पहले इंडिविजुअल को देखेंगे, बाद में सोसाइटी का फैक्टर, फिर ऑर्गेनाइजेशन, फैमिली का फैक्टर, और सबका फैक्टर देखेंगे। सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल पे देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हमारे एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सबसे पहले है कि एजुकेशन जो हमें मिल रहा है। दूसरा है कि हमारा सेल्फ एक्सपीरियंस, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। फिर हमारी फैमिली, अकॉर्डिंग टू फैमिली हमारा एटीट्यूड बिल्डअप होता है। सोशल फैक्टर भी हमें एटीट्यूड फिर कल्चर, हमारा जो कल्चर है, हमारे रिलीजन है, वो भी हमें इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे एटीट्यूड के। जैसे कि मुस्लिम में अल्कोहल पीना निषेध है, तो उस अल्कोहल के टुवर्ड नेगेटिव उनका एटीट्यूड होगा। लेकिन वेस्टर्न कल्चर में, क्रिश्चियनिटी में अल्कोहल को वो लोग बुरा नहीं मानते, तो उनका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा।
तो ये हो गया रिलीजियन बेस्ड। फिर कल्चर बेस्ड, फिर आएगा कि कंडीशनल के बेस्ड ऊपर, जैसे कि कोई कंडीशन है, उसमें क्लासिकल एडवर्टाइजमेंट, कोई एडवर्टाइज देख के हमारा एटीट्यूड चेंज होता है। फिर किसी पर्टिकुलर मोमेंट के दौरान, जैसे कि हम कोई ट्रैवलिंग कर रहे हो और उस वक्त कोई म्यूजिक सुन रहे हो, तो वो उस म्यूजिक को हम सालों बाद भी हम सुनेंगे तो हमें वो उस पर्टिकुलर मोमेंट की याद आएगी। अगर वो अच्छा होगा मोमेंट, तो वो म्यूजिक के टुवर्ड हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होगा। अगर वो मोमेंट हमें अच्छा नहीं लगेगा तो वो म्यूजिक के टुवर्ड हमारा एटीट्यूड बुरा होगा। तो ये कंडीशनल बेस्ड हो गया। और एक इन्फ्लुएंस, एक फैक्टर है कि कोई सोशल मीडिया है, फिर टेलीविजन है, वो भी हमारा एटीट्यूड के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये होगा फैक्टर अफेक्टिंग द एटीट्यूड। ये 2014 में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ पर्सन एटीट्यूड टुवर्ड द सोशल प्रॉब्लम एंड इन आवर सोसाइटी contrasting attitude are prevalent about many social problems. What contrasting attitude do you notice about caste system in our society? How do you explain existence of contrasting attitude? तो ये हो गया 2014 का क्वेश्चन। 2021 में एटीट्यूड इज इम्पोर्टेंट कंपोनेंट दैट गोज इनपुट द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग और हाउ टू बिल्ड द एटीट्यूड, ये 2021 में आया था। 2016 में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था कि एटीट्यूड को कैसे बिल्डअप कर सकते हैं। तो हमने ये देख लिया कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एटीट्यूड है। अब क्वेश्चन ये है कि फैक्ट एटीट्यूड को चेंज कैसे लाना है एटीट्यूड के ऊपर। तो इसके लिए एक सोशल इन्फ्लुएंस है, वो उसको हम सोशल इन्फ्लुएंस बोलते हैं। एक है परसुएशन, यानी कि जो सेल्समैन है वो हमारा एटीट्यूड चेंज करता है हमारे सामने बैठ के, उसे जो प्रोडक्ट बेचनी होती है उसको बोलते हैं परसुएशन। फिर हमारा फैमिली, हमारा सोसाइटी, फिर जो सोशल मीडिया है, फिर हमारा सेल्फ एक्सपीरियंस, ये सब, और कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ये भी है जो हमारे एटीट्यूड को चेंज करते हैं। फिर इमोशनल कॉग्निटिव अफेक्टिव बिहेव कंपोनेंट, फिर कॉग्निशन यानी कि नॉलेज भी हमारा एटीट्यूड चेंज करता है। और जो बिहेवियर भी हमारा एटीट्यूड चेंज कर रहा है, बिहेवियर कंपोनेंट। अब लास्ट टॉपिक रह गया है कि मॉडल्स ऑफ एटीट्यूड कौन कौन से हैं। तो एक है कि ईएलएम मॉडल। ईएलएम जो कि पैटी एंड कैसियोप्पो ने दिया था, जिसे हम इलेबरेशन लाइक्लीहुड मॉडल बोलते हैं। इलेबरेशन लाइक्लीहुड मॉडल में एक सेंट्रल प्रोसेसिंग रूट ऑफ एटीट्यूड माना गया है, वो है कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड, जिसे हाईली रिस्पॉन्सिबल माना गया है एटीट्यूड के ओरिजिन के लिए। इलेबरेटिंग लाइक्लीहुड मॉडल में कॉग्निटिव कंपोनेंट को ज़्यादा जोर दिया गया है। हालांकि उन्होंने जो अफेक्टिव कंपोनेंट है उसे पेरिफेरल रूट में माना गया है, कि इमोशनल और फीलिंग बेस्ड जो है उसे पेरिफेरल रूट में माना है। तो ईएलएम जो ईएल मॉडल है उसमें कॉग्निटिव प्लस बिहेवियर अफेक्शन, नॉट बिहेवियर, कॉग्निटिव एंड अफेक्शन, दोनों कंपोनेंट को फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर एटीट्यूड माना है। दूसरा मॉडल है, उसे बोलते हैं ह्यूरिस्टिक सिस्टमैटिक मॉडल, जिसको इगली ने दिया था, EAGLY। तो ह्यूरिस्टिक सिस्टमिक मॉडल में उन्होंने बताया है कि फीलिंग यानी कि अफेक्शन और इमोशनल, वो एटीट्यूड को अफेक्ट करता है। उन्होंने कोई कॉग्निशन को माना नहीं है। तो ह्यूरिस्टिक सिस्टमैटिक मॉडल ये है। एंड थर्ड मॉडल which is most important is extended parallel process model। extended parallel process model, जिसको EPPM भी बोला जाता है, जिसमें कॉग्निशन को
प्लस उसके साथ अफेक्शन फीलिंग और इमोशन को प्लस फियर को फॉर रिस्पॉन्सिबल माना गया है एटीट्यूड के लिए। फियर यानी कि जो एंटी स्मोकिंग कैंपेन है उसमें बताया है कि स्मोकिंग करने से आपके लंग में कैंसर हो सकता है। ये एक फियरफुल कंपोनेंट। तो 3 मॉडल हमने देखे। सबसे पहले था इलेबरेटेड इलेबरेशन लाइक्लीहुड मॉडल, जिसमें कॉग्निटिव प्लस अफेक्शन वाला जो मॉडल था, जिसमें कॉग्निशन को ज़्यादा वेटेज दिया गया है। दूसरा था ह्यूरिस्टिक सिस्टमेटिक मॉडल, जिसमें ओनली इमोशनल कंपोनेंट को। एंड थर्ड था कि एक्सटेंडेड पैरेलल प्रोसेस मॉडल, तो उसमें तीनों यानी कि